Hello and welcome to this special episode of Reporters Without Orders, where, as last 4 years and even this year, we discuss what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. So this is a reporter special. We have a lot of podcasts where you have experts and editors talking about stories and what made news, but this is a reporters podcast. The tribe of us who go on the ground, bring you the stories, know what's going on. And joining us today are all Newslaundry reporters. They'll be coming to us in these small batches. But to start with, this is my co-host Basant. हाँ, मैं भी कहने वाला था, अपने co-host को ही भूल गए जी, मेरे को आदत नहीं है ना तुम्हारे साथ होस्ट करने की। मैं हमेशा माना कि हीरो तुम हो, लेकिन जो सपोर्टिंग कास्ट है उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। चलिए, आपने शुरू में इज्जत दे दी हमें, बट हाँ, दिल पे लगी। We start with Shiv, who's here, who's joined us in Newslaundry this year, and he's already reported from Punjab, he's reported from Haryana, he's reported from Gujarat, he's reported from Rajasthan also. तुमको बहुत opportunities मिला है आधे साल में. Akanksha, of course we have Akanksha, who's been with us for longer than a lot of people here. Hi Akanksha. Hello Ayush. And of course joining us online from Pune is Prateek. Hi Prateek. I just saw you Hi. yawning. इतना भी बोर नहीं करते हम लोग, लेकिन कंटिन्यू कर। हाँ भाऊ, आपका तो बहुत स्टोरी है इस साल, तो मतलब चूज करने में थोड़ा तो मुश्किल हुआ होगा आपको, लेकिन whatever Prateek tells us about his favorite stories, my favorite story of Prateek this year was the loan, the predatory loan Loan apps. हाँ, that was a great story. और वो सेना भी तो इसी साल था ना, जो वो एक साउथ के बाबा जो हैं, इसी साल का था ना, सदगुरु। नहीं 2022 का था, 2022 का था। क्योंकि मैं मतलब नेपाल गया था, तो वहाँ भी हाँ, सदगुरु के बहुत चाहने वाले हैं, तो वहाँ भी इनकी स्टोरी को ट्रांसलेट करके नेपाली में, वहाँ लोकल मीडिया है जो स्थानीय मीडिया, नेपाली में छापा था, जो अंग्रेजी में पब्लिश हुए थे। और उसके लिए क्या हमें कुछ नोटिस आया था या कुछ थ्रेट किया था नहीं, उन्होंने लीगल एक्शन के लिए? सिर्फ अपन को ही नोटिस नहीं आया, बाकी जिसने भी उस पर स्टोरी करी, हाँ, वो वाइस ने करी थी, सबको नोटिस आ गए। राइट, ये होता है हमारे साथ काफी, क्योंकि हम फैक्ट के साथ रहते हैं। हाँ, त्रिपुरा में भी हुआ था हमारे साथ। बट Anyway. इस साल उन्होंने आपका एक स्टोरी था प्रतीक जी का कि गवर्नर पे किया था, गवर्नर की बेटी पे। हाँ, आई लाइक जो दैट LG, स्टोरी, रियली अच्छा था स्टोरी, दिल्ली वेरी गुड LG. स्टोरी। Oh, Delhi LG who ran Delhi a LG, yeah. art museum somewhere in Bombay. Yeah, that was also a great story. चलिए, अब आप अपनी कहानी के बारे में हमें बताइए. What was your story from this year that, you know, of all stories you will remember even into the next year perhaps, and why? Like, I mean, I think couple of stories that I would like to mention. One is two stories that I did from Punjab and Haryana. Madhu was there with me, and for first 2 days we were not sure like what should we write or story का line क्या होना चाहिए, because we didn't want to do, I mean, those run of the mill stories कि पराली जल रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है, वो हो रहा है. But on the third day we saw a pattern that why farmers are burning, why farmers are partly burning their stubble. So then we realized that this is the pattern that we should focus on. So we found out the reason why farmers are burning half of the stubble, half of the farm residue. And then another story was we compared Punjab and Haryana, like why Haryana is better prepared to curb stubble burning than Punjab. So we compared 3 districts, one from Haryana and 2 from Punjab. And we found out that that the number of machinery available in Punjab is much less compared to Haryana. So that's where we found that this is the reason why Haryana is much more successful than Punjab. So maybe from next year Punjab will do better. And both of you traveled for several number of days, and you covered a lot of distance throughout, and Distance, you met yeah. a lot of people. That was the requirement of the story, because unless you I mean, we want to speak to as many people as we can, as many farmers in this case, and only then you can see the pattern. So if you visit only 2-3 villages, then I mean the quality of the story would be not that great. So I mean the same, I think same thing with when Basant was there in Gujarat. We wanted to speak to as many people as we can, because
in election stories, it's very hard to gauge the mood of voters. Same thing in Punjab also, because the stubble burning issue has been going on for several years, like at least for 10 years, 15 years. So I think, of course, we read newspapers, like what is the line, what are the stories that are being published in newspapers, or what are the stories coming in broadcast media also. So that's also at the back of your mind, like we don't want to do the same story. And I think I know what you mean. The Indian Express had done a story actually talking about why Haryana had been a more successful model when it came to management of stubble. But also, this was from what I understand, this was your first or one of the first video stories also. Yeah. I saw you on video. I don't think you had done video before. I think you should ask Parishit, like how effective I am when I do video stories. Right. And Madhu had a hard time. I think there were thousands of takes. Right. Because I'm not comfortable in front of camera. Right. So it took me also some time to get used to camera. And I think if there was no video story, I think we could have spoken to more people, because there was so much time that we spent on video stories. I mean, video stories, of course, there are a lot of people who can't read, they will get, the message can be conveyed to more people through video stories than through text stories. Right. But I think it was wonderful. Madhu did a lot of work on videos. प्रदूषण था दिल्ली में था, जब जाएगा पहला हम प्रदूषण में हमारा हाल तो देखो क्या है। कोई शौक नहीं है किसी को जलाने का, जितना हो सकता है कम कर रहे हैं। हम सरकार से यही बेनती करते हैं कोई ऐसा साधन बनाए कि हमको प्रदूषण करना ना पड़े। Air pollution in Delhi is a big problem. There are various factors that contribute to air pollution. Some of them are transport, dust, industrial pollution. Stubble fire is also one of the contributing factors, especially during winters. आपने एक स्टोरी की चर्चा तो कर दी पंजाब की, लेकिन मुझे आपकी एक स्टोरी अच्छी लगी और मैं उस स्टोरी में थोड़ी सी मेरी भूमिका थी। रात को 1 बजे तक मैं आपके साथ अहमदाबाद के चौराहों पे घूमता रहा था। मुझे उसमें ये जानना था, दरअसल स्टोरी ये थी कि चुनाव से 2 दिन पहले ये होता है कि सारे होर्डिंग्स हटाना होता है, पर भाजपा ने क्या किया था, आरएसएस के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पूरे अहमदाबाद के जितने बोर्ड है वहाँ पे भगवा कलर का वोट देने आना, पहले नाश्ता फिर वोट, एक जगह पे लिखा हुआ था भूपेंद्र भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ऐसा कुछ था। तो हम लोग पूरे एक पहले मतदान फिर कन्यादान, बिकॉज और वो भूपेंद्र भाई वाला जो डायरेक्ट था, भूपेंद्र भाई नो वोट करे छुए ऐसे करके। तो उस स्टोरी में कहीं कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि ये है किसका, पर शिव भाई मैं क्योंकि ये उस स्टोरी पे काम कर रहे थे, हम लोग रात को साथ घूमे, तो आप उन लोगों तक कैसे पहुँचे जिन लोगों ने वो पोस्टर लगाए थे, वो प्रोसेस बताइए, क्योंकि मैंने तो देखा है 2-3 घंटे में होटल में साथ ही था जब आप कर रहे थे कॉल, वो थोड़ा प्रोसेस बताइए। और सबसे हैरानी की बात है कि वहाँ का डीएम कह रहा है कि ये भगवा कलर बीजेपी का थोड़े होता है, जो चुनाव अधिकारी होता है। नहीं, वो जो बसंत के पैसे ख़त्म हो गए थे तो बसंत हमारे साथ 3-4 दिन, लास्ट के 3-4 days वी वर स्टेइंग इन द सेम होटल, सेम रूम। और फिर बसंत ने भी मेंशन किया था कि ये भगवा कलर के बोर्ड काफ़ी लग चुके हैं, और मैंने भी उससे पहले किसी जर्नलिस्ट से बात किया था कि बोर्ड किसने लगाए हैं, कौन है। तो उन्होंने कहा कि जो ये एडवर्टीज़मेंट वाले हैं उनसे आप बात कीजिए, वो हो सकता है बता सकें कि कौन लगाते हैं ये। तो फिर उन्होंने बताया कि एक बीजेपी के ही डजंट होल्ड एनी पोजीशन इन बीजेपी, बट बीजेपी से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, और जब बीजेपी पावर में थी उसमें भी उनके काम बीजेपी के बोर्ड लगवाना, वो करवाना, वो करते थे। नाउ ही इज़ रिनोन्ड एड मैन इन गुजरात। तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछो। फिर मैंने उनका नाम चेक किया, फिर पता लगा कि वो किसी आरएसएस की संस्था से भी जुड़े हुए हैं। फिर वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी जर्नलिस्ट से मुलाकात भी, जर्नलिस्ट ने काफ़ी हेल्प की हमारी, गुजरात के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके कांटेक्ट हैं। तो जो आरएसएस के वो एक कल्चरल विंग था आरएसएस का, तो उन्होंने बताया कि हमने लगाए हैं वो 3000 की टू स्प्रेड वोटर अवेयरनेस, बिकॉज फर्स्ट फेज़ में, ये सेकंड फेज़ का था अहमदाबाद में जो वोटिंग हुआ था, फर्स्ट फेज़ में वोटिंग काफ़ी कम था। तो भाजपा में ये था कि जो अर्बन वोटर्स हैं, अगर वो इफ़ दे स्टे अवे, सो भाजपा का कोर वोट बैंक अर्बन वोटर्स ही हैं देखा जाए तो अगर वो इफ़ दे चूज़ टू स्टे अवे फ्रॉम वोटिंग, देन इट माइट हैम्पर बीजेपी's चांसेस, और
might have negative impact. तो इस कारण से वो सब जगह बोर्ड लगे हुए थे. It's not only awareness boards, there were boards asking people to vote for Bhupender Bhai also. So that was violation of EC, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, और द साइलेंस पीरियड का जो वायलेशन था. लेकिन हटाया नहीं गया. हटाया नहीं गया, लेकिन फिर हम रात को गए भी थे काफ़ी जगह बसंत, और हम ऑटो में आई थिंक 10-15 किलोमीटर हम घूमे होंगे पूरे अहमदाबाद में. सब जगह वो बोर्ड लगे हुए थे, और भूपेंद्र भाई के भी कि उनको वोट दीजिए, विच वाज. और हम शिव भाई ने डीएम से बात की, जो चुनाव अधिकारी होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, यानी आप चुनाव के टाइम पे घर से निकल ही नहीं रहे हैं. क्योंकि हम अपने होटल से निकलते थे, कहीं भी जा रहे हैं 3 किलोमीटर दूर, तो 2 बोर्ड हमें दिखे जाते थे लगे हुए चौराहे पे, जो गोल चौराहा होता है उसके चारों तरफ बना. हाँ, आई वाज सरप्राइज्ड टू. मैंने आई स्पोक विद डीएम, मैंने कहा कि आपके इतने सारे बोर्ड लगे हुए, सम 3000 बोर्ड्स इन अहमदाबाद. तो उनका कहाँ लगे, हमें तो पता भी नहीं है. आई मीन यू आर रिटर्निंग ऑफिसर, दैट्स योर जॉब, नो? जस्ट वन डे बिफोर फॉर वोटिंग, that's your job to see if somebody is violating silence period or not. Akanksha, let's talk about your stories. Do you have an estimate of how many stories you did, by the way, this year? Raman sir knows. I'm not sure about the tally. Also because I think there was a break of 4 months. So this was also a year for me to pause and reflect. How Year to... for us. Actually, Sorry? both of us. Yeah, yours, you were on a 2-month break, Yeah. and I took the liberty of stretching it with by another 2 months. Right. So I think, I mean, of course, as a subset of 2022, it's not enough for me to be able to look back and talk about it. I mean, there are just 2 stories that come to my mind, which I did at the beginning of the year, which was ground reports from Pali district, where a man from the Meghwal community was allegedly killed for flaunting a mustache. So this is what appeared to be when the initial incident was reported. And I think by the time I reached there, there were also these audio messages from the Raj Purohit community, who are the dominant caste there, who are actually calling their local BJP MP and telling him not to raise the issue in the assembly, or to sympathize with the Meghwal family. And the Meghwals come under the scheduled caste in Rajasthan. And I think there were 2 video reports. One was, of course, on the incident, the profile of this guy who was a health worker at a CHC in Pali, had ambitions and aspirations like any other guy would have, more so because he belonged from the Meghwal community. So there was this, like, he was the only one who had a social media account in his family. So one could sense a young man who wanted to climb up the social ladder, and a life cut short, unfortunately. 28-year-old Jitendra Meghwal, a health worker based in Barwa village of Pali district in Rajasthan, was killed allegedly for flaunting a mustache, something which is considered to be a symbol of privilege among sections of upper caste here. On my way from Delhi to Rajasthan, the question I had was whether someone can be killed only because he wanted to adapt a certain lifestyle, something which is considered to be exclusive among certain sections of society. Article 15 of the Constitution says, and I quote, "The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them." Clause 2 of the same Article 15 continues to say that any sort of segregation in terms of access to public places shall also not be allowed. And yet, caste-based discrimination is rampant across different parts of Rajasthan, something which continues to dictate life choices for those from the marginalized community. But what really struck me as I started to talk and travel around his village
because I spoke both, to with the members of the Meghwal community as well as Raj Purohits, that this casteism is so much embedded. It was so much a part of the system there, that something like this was waiting to happen. Like someone from the Raj Purohit community telling me that, we had these boards which say that you are welcome to the village of Raj Purohits. That in itself gives you a sense of the stratified society you and me, we are a part of. And this is like 2022, where they don't think that this is wrong, that this is a ghettoization of a certain kind, and that they are trying to assert themselves owing to the very caste that they belong to. And there was a follow-up video report along with this, in which I visited some neighboring villages, and I met some people from Pali itself, which apparently is one of the districts in Rajasthan where such caste-related atrocities are reported on a regular basis. And of course, this has become such a regular drill for us that I think it has also dehumanized us, made us insensitive to the extent that probably we don't even react. But there are people who are stuck in the vicious cycle of even following their cases under the SC/ST Act. And hearing after hearing, witnesses turn hostile. There is a very lackadaisical as well as callous approach of the IOs in respective cases, whom they allege have this attitude because they belong to upper caste. So I think it was an eye-opener. It really kind of made me think if just documenting these incidents is enough, how can you play a role as a journalist in bridging this gap? So, when we go out on the ground to report stories where, such as yours, where you have two set of people, a dominant community and a community that has been historically marginalized, of course, it's very easy to come across people who will justify on this side why this has to happen, and on the other side, people who are like, this is tragic, it shouldn't happen. But do you on the ground often meet people who are the voice of reason when you did not expect to meet one? Say in the Raj Purohit community, did you ever come across people, or in the police, let's say, who said, yes, this was wrong, it shouldn't have happened? Or do you not meet anyone, which is also something? I think, on the contrary, Ayush, I think what I felt that the administration was to be blamed in this particular case, as far as averting such an incident is concerned. Because after this guy died, I came across these boards which, the local DM and SDM, they had said that they should be painted with white. They have, like the Meghwals have their own burial ground. And it's clearly demarcated from the, crematorium of the Raj Purohits. And even the fact that, there was the board of the Meghwal's burial ground was painted white. So I think they come up with these superficial solutions just to contain the anger for the moment. But there is no accountability or responsibility as far as the administration is concerned. And speaking of a saner voice, I think it's very difficult to find a saner voice at the village level, because it has been ingrained into their psyche generation after generation. It's only the younger, lot, someone like Jitain Meghwal, who was trying to challenge that by flaunting a certain lifestyle. And they too actually become victim of the same mindset. So it's very difficult to find a saner voice, because they would tell you, but हमने तो नहीं मना किया उनको मूंछ रखने से, आप हमारे एल्बम देख लीजिए. लेकिन आप जब मेघवाल समुदाय के लोगों से बात करेंगे, वो कहेंगे नहीं, हम आंख मिला के बात नहीं कर सकते इनसे, ये हमको माँ बहन की गाली देने लगते हैं. So who do you believe? Every party has their own version of the
system that they have been part of for almost all of their lives. Thanks a lot, Akanksha. Lastly, we'll come to Bhau. Prateek, what were your stories that you'd like to talk about? I've noticed that आपका reporting का style मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. I think at some point either when you're interacting with your sources or I don't know, you talking with someone, you find there are certain trends in society कि कुछ कहीं पे गड़बड़ चीज़ें हो रही हैं, and you take that up and you do that as a story, which is I think a great habit for reporters to have. And you're also the senior most on this table for the moment, I think entire newsroom now. तो आप बताइए कि हाँ, मैं प्रतीक सर के सोर्स की एक कहानी बताना चाह रहा हूँ कि अपना मीडिया रंबल का वो चल रहा था इवेंट, और तब शायद ये जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जिनको नक्सल के मामले में अरेस्ट किया गया था, जी एन साईं बाबा, तब उनको जमानत मिली थी। तो मैं और प्रतीक सर सामने बैठे हुए थे, बात कर रहे थे आपस में। मैंने व्हाट्सअप ट्विटर पे देखा, मैंने 1 मिनट पहले किसी ने ट्वीट किया था कि प्रतीक सर ये तो जी एन साईं बाबा को जमानत मिल गई। करीब 2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, प्रतीक सर के व्हाट्सएप पे आ गया पूरा वो जजमेंट, बोले देख भाव आ गया जजमेंट। फिर 2 मिनट में, मतलब ये सोर्स का मजबूत होना है ना कि आपके पास इतने लोग हैं जानने वाले कि 2 मिनट में पूरा जजमेंट आपके पास आ गया, आप उसमें पढ़ के अपनी स्टोरी कर दीजिए। अरे पुणे मिरर के क्राइम रिपोर्टर थे, तो इतना तो करेंगे। भाव प्लीज टेल अस योर फेवरेट स्टोरीज ऑफ द ईयर। यार मेरे को ना मतलब एक तो मेरे को ना ये जो दिशा वाला जो एक स्टोरी किया था हम लोगों ने, दिशा सालियान और उसका जो उसके फियांसे उसका जो फैमिली का इंटरव्यू लिया था, एक वो मेरे को स्टोरी इसलिए लगता है कि जो मीडिया ने उनकी जो हालत की है, मतलब उस फैमिली की, मतलब इतना ज्यादा वो किया। और अभी मतलब मैं इसलिए वो बता रहा हूँ क्योंकि अभी मौजूदा जो हाल है इसमें वापस से एक एसआईटी बैठा दी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया अभी 3-4 दिन पहले, जबकि पूरा मामला साफ है कि भाई वो जो कॉन्स्पिरेसी थियरी जो क्रिएट की गई थी कि भाई दिशा का के साथ ये हुआ है और गलत हुआ है, और आदित्य ठाकरे और इन सबका जो नाम लेके वो उसकी फैमिली एक बार पूरा क्लियर कर चुकी थी। हम लोग जो हमने इंटरव्यू किया था वो फर्स्ट टाइम उसके जो रोहन है फियांसे, उसने बात करी थी। तो इतना होने के बावजूद भी मैंने जब वो देखा कि मीडिया, मेरे को लगता था कि मतलब कि मीडिया बहुत, मतलब मीडिया जनरली पहले ये सोचते थे कि भाई पत्रकार है तो अच्छा है ये, कि मीडिया किस तरीके से किसी को बर्बाद कर सकता है। तो वो एक चीज, वो स्टोरी मेरे को इतने दिल से इतना करीब लगती है कि वो फैमिली को देख के मतलब वो उनको एक ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि वो अपनी बात बता सकें, क्योंकि वो जब भी वो बोलते थे कि हर कोई उनकी बात तो घुमा देता है। तो एक वो स्टोरी मेरे को लगती है। उसके बाद एक ये बीच में अपन ने मतलब ये स्मृति ईरानी वाली किया था, हालांकि वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उन्होंने वो निकाला था, उनके आरटीआई में आया था, लेकिन उसके बाद जो हमने उसका जो एमजे के साइट से निकाला था, वो एक मेरे को मजा आया था, क्योंकि वो स्टोरी में मतलब एक एज ए रिपोर्टर बोल रहा हूँ कि मजेदार लग रहा था। कि स्टोरी क्या थी भाव, एक बार हमारे लिसनर्स को बताइए स्टोरी क्या थी। वो स्मृति ईरानी, उनकी जो बेटी थी, उनका मतलब वो जो फर्स्ट टाइम जब वो आरटीआई में आया कि भाई जो लाइसेंस है दारू का, जो मतलब बार का लाइसेंस होता है, उसको रिन्यू किया गया किसी दूसरे बंदे के नाम पे। और पता चला कि वो जो बार था, मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई कि भाई उनकी बेटी का है ये वो, उसका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और तमाम चीजें हो गई। तो जब फिर हम लोगों ने उसके डॉक्यूमेंट्स निकाले उनकी साइड से, तो उसमें मतलब उनके जो हस्बैंड हैं, वो उनके कुछ दोस्त, वो जो उगरा आया, जो मतलब उनका जो कंपनीज के नाम थे, जितनी भी बहुत सारी कंपनी हमने चेक करी, तो उसका जो पैसा है, उसका जो परसेंटेज है, जो उसमें जो फंडिंग है, वो इन्हीं कंपनीज के जरिए, और इन्हीं कंपनीज में जो डायरेक्टर्स थे वही उसके बोर्ड में। तो वो उससे वो चीज क्लियर हो गई थी। तो वो एक मेरे को मतलब एज अ रिपोर्टर मजा आया था स्टोरी करने में बहुत को, क्योंकि मतलब वो जिस तरीके से डिनाई कर रही थी उस चीज को दिल्ली में बैठ के कि मतलब ये कर देंगी, सू कर देंगी, कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी कि, और कोर्ट ने भी उसमें बोल दिया था कि इनको इस तरीके से बात नहीं करनी। आई थिंक जयराम रमेश या पता नहीं किसने स्टेटमेंट दिया था वो। तो वो एक एज अ रिपोर्टर के तौर पर मेरे को मजा आया था। बाद में एक जो स्टोरी मेरे को और लगती है कि हम एमपी गए थे, मैं और अश्विन। तो वहां पे वो जो जिस तरीके से वहां पे मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को जो बेसिकली सिंपल स्ट्रेट अवे टारगेट कर रही थी गवर्नमेंट, वो एक मतलब बहुत खतरनाक चीज देखे के तौर पे थी एज अ रिपोर्टर, क्योंकि मतलब किसी ने कुछ किया भी नहीं है। अगर समझ लो कि
न्यूज़लॉन्ड्री के ऑफिस में दंगा हुआ है और और उसके चक्कर में एनडीटीवी के ऑफिस या टाइम्स नाउ के ऑफिस के लोगों को पकड़ के पेल दिया। तो वो वाला हिसाब वहां पे दिख रहा था। और लोगों को घर दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 80 साल के बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना पूरी जीवन काट दिया, उनको कि उनको पक्का घर मिलेगा, और जब उनको घर वो मिला 2 साल पहले तो उसको तोड़ दिया। वो बराबर चल नहीं पा रहे थे, वो क्या दंगे में शामिल हो गए। और वो जहाँ पे दंगे हुए वो वहां से दूर, और सेलेक्टिवली सिर्फ टारगेट करना मुस्लिम्स को। मतलब वही उसी स्टोरी के दौरान एक बंदा था, हिंदू था, जो जिसने एक बेचारे दूसरा बंदा जिनको मारा वो भी हिंदू थे। और वो थोड़े से मतलब आई थिंक थोड़े डिसेबल थे। उनका दिमाग मतलब बराबर से वो जवाब में बात नहीं कर सकते थे, तो उनको पीट पीट के मार दिया। लेकिन उस बंदे के घर से बुलडोजर नहीं चलाया गया। तो वो जो मतलब बोलते हैं ना, रिपोर्टर अपन जहाँ जाके देखते हैं कि यार क्या इनकी, और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, और वही चले आ रहा है। अभी भी उन लोगों के मुझे फोन आते हैं कि भाई कुछ हुआ क्या, कुछ हो सकता है क्या, भाई कुछ हो सकता है क्या। तो वो एक स्टोरी ऐसा लगता है कि मतलब आई मीन ये सब स्टोरीज हैं जो मेरे को बहुत ऐसा अच्छा लगा, मजा आया करने में। लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने ही मिला। और एक बुरा भी लगता है कि यार एज अ वो लोग अपन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा अपनी रिपोर्ट से कुछ हो जाएगा, वो नहीं होता। वो एक अलग डिफरेंट चीज है। बट फिर भी लोगों को एक होप रहती है जर्नलिस्ट लोग से। तो ये सब है, और भी हैं स्टोरीज तो, लेकिन ये कुछ जो मेरे को लगी मतलब ऐसा। अभी फिर से बुलडोजर चला है, कोई पंकज त्रिपाठी करके नौजवान था। हाँ और हाँ जैसे प्रतीक सर ने बोला कि जो लोग जिन्होंने कांड किया उन पे बुलडोजर नहीं चला, लेकिन ऐसे ये नहीं कि हम बुलडोजर जो नया न्याय का एक तंत्र तैयार हो रहा है उसको हम तरीका सपोर्ट है, कर रहे हैं। बहुत सही बात। अब उस लड़के ने बहुत ही गलत काम किया। वो वीडियो देख नहीं पा रहा था मैं, जब वो लड़की को ऐसे उठा के फेंकता है, उसके माथे पे पैर मारता है, शायद प्रेमिका थी उनकी। अब उसकी गलती, इंडिविजुअल की गलती है, उसका घर तोड़ दिया गया। तो जो घर तोड़ा जा रहा है वो गलत है, किसी का तोड़ा जाए ये हम नहीं बिल्कुल चाहते। बिल्कुल। ये दिशा साल्यान ये जो वाले बात, जी जी कुछ कह रहे बिल्कुल हैं। ये बसंत ने जो बात बोली ना, कि ये जो एक एग्जाम्पल चीज सेट करना सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए, कि भाई बुलडोजर से घर तोड़ना, ये कौन सी किताब में लिखा है ना? सीआरपीसी में है ना, कोई भी कानूनी किताब में ये नहीं लिखा कि भाई ये सजा देने का तरीका है। ये तो कभी गलती कोई एक कर किसी के रहा है ना, फादर के घर पे इंडिविजुअल घर कर हो रहा सकता है। है, किसी की मदर के घर पे घर हो सकता है। ये दिशा साल्यान का मामला सर फिर क्यों उठाए? जब सरकार बदली देखिए इस अभी, कारण, या कुछ और भी हाँ, है? सरकार बदली है अचानक से, ठीक है। अब ये तो अपन सभी जानते हैं, जिसने भी वो पूरा मीडिया को जो अर्नब गोस्वामी और वो जो तमाम उन चैनल को फॉलो किया था, तो वो एक उनका एक तरीका था टारगेट करने का। वो आदित्य ठाकरे का नाम हर जगह उसमें वो लेके आते थे, ठीक है। अभी वापस से, अब जब ये आई है गवर्नमेंट, उनकी जो फैमिली है, दिशा की फैमिली, वो मतलब वो परेशान हो चुकी है इन सब पूरी झमेलों से। और वो पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसमें एक एक चीज में सामने आया। वहां पे मौजूदा लोग जो उनके फियांसे थे, उनके दोस्त थे, वो एक एक चीज साफ कर चुके हैं। हमारे इंटरव्यू में उन्होंने एक एक चीज बताई है सब लोगों ने। उसके बाद वो पुलिस से ही बता चुके हैं, सबसे बता चुके हैं। लेकिन जस्ट एक पॉलिटिकल, एक मतलब उसको एक राजनीतिक उसका रंग देने के लिए, या फायदा उठाने के लिए, या किसी को इनडायरेक्टली निशाना साधने के लिए, ये जो मुझे लगता है कि ये एसआईटी का जो गठन बोला जा रहा है वो किया जा रहा है। और तो वो अचानक से अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उन्होंने कर दिया। और जहाँ, क्योंकि वो जब जो फेक, जो इस तरीके के ये फेक मैसेज सर्कुलेट हुए थे, या मीडिया में दिखाया जा रहा था, जो रिपब्लिक टाइप के चैनल जो दिखा रहे थे, उसमें भी वो आदित्य ठाकरे उनको बराबर ठाकरे, उद्धव ठाकरे उनको टारगेट करते थे। तो अभी सरकार चेंज हुई है, वो एसआईटी अनाउंस हुए, तब से आप देखोगे तो वापस से मतलब ट्विटर पे भी आप देख लो तो आदित्य ठाकरे का नाम ट्रेंड हो रहा था। कोई भी उनके उनके ऊपर मीम्स बनने शुरू हो गए फिर से। और विधानसभा के मतलब सत्र चल रहा है, या उसके बाहर भी अगर कोई नेता बयान दे रहे हैं तो वो भी उनके ऊपर ये कर रहे हैं। तो एक उसको जितना मेरे को समझ में आता है कि वो एक राजनीतिक उसका निशाना साधने के लिए उसको अभी अचानक से उस चीज को वापस से निकाल लिया गया। Okay, thank you, Shiv, Akanksha, and Prateek for talking about the wonderful ground and investigative stories you've done this year. But before you leave, Bhau, let's talk about your recommendations. कुछ है ऐसा जो आप चाहेंगे हमारे दर्शक सुने, देखें, पढ़ें? हाँ, नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है खाकी, जो कि एक एक्स आईपीएस ऑफिसर, सॉरी एक्स नहीं, तो करंट आईपीएस आईजी आई थिंक बिहार में, अमित लोढ़ा, उनकी बुक के ऊपर आधारित है। और वो ट्रू स्टोरी है, तो काफी अच्छी सीरीज है। तो मेरा रिकमेंडेशन वही है।
Akanksha? I have 3 recommendations, so please bear with me. First is a documentary I watched recently on Hotstar. It's I'm just forgetting the title, but it's basically based on the entire decade between 2001 to 2020. So it begins with how the world changed post 9/11, how the media shouldn't have focused on something like Janet Jackson's wardrobe malfunction and should have focused on some other issues. So that made for an interesting watch. I also would recommend The Crown season 5. I don't know why the reviews have been bad, but I really liked it. The I like entire it too. and every episode is just structured so well. The irony of it and the way it has been produced and directed, I think I really liked it. कौन सा The Crown season 5. The Crown. हाँ. And my last recommendation is I have been hooked to the Outlook cover stories for a while, and there was this latest edition they did on secularism. And in midst of this entire debate, whether secularism is a Western import, whether it should have a place in our constitution, I think I really would recommend the essay by Ashutosh Bharadwaj, because he kind of does a deep dive. He kind of does a deep dive and takes us through the historical background, including the debates in the Constituent Assembly. So that made for a fascinating read. Shiv, your recommendation? I'm working on a story on a bank fraud. So I had to read one book. That book is by one IRS officer, Samarak Samai. So that book is about, the name of the book is The Great Indian Fraud. So it chronicles, since independence, the biggest banking frauds. It includes chapters on tax havens, how businessmen are diverting their, to save taxes, how they are diverting their money to tax havens. Right. And it has also mentions of Ketan Parakh and Harshad Mehta, Okay. all these biggest frauds, Okay. and how they took bank loans and how they defaulted on their loans and how they diverted those funds to other shell companies. So I think people who are interested in bank frauds and all, they can check this book out. Okay, thank you, all Thank three you, of you, Ayush. Thank for the you, wonderful Basant. work. Thank you. And we will now be joined by a younger set of Newslaundry reporters. It is Tanishka and Anmol. आकांक्षा जी राजस्थान पाली गई, प्रतीक सर मध्य प्रदेश गए, शिव पंजाब गए। इन तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स बाहर जाते हैं उसमें काफ़ी खर्च आता है, ट्रैवल का हो, खाने का, रहने का। और आप सब जानते हैं कि हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते, न्यूज़लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता। हम आपके यानी आप सब्सक्राइबर जो हमें देखते हैं, हमें पढ़ते हैं, हम उनके सहयोग से काम करते हैं। तो न्यूज़लॉन्ड्री को अगले साल जो नया साल आने वाला है उस साल भी अपना समर्थन बनाए रखें, हर साल समर्थन बनाए रखें, ताकि हम ऐसे ही आप तक रिपोर्ट पहुंचाते रहें। अब हम बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ 2 नए नौजवान रिपोर्टर आ चुके हैं, तनिष्का जी और अनमोल। तनिष्का जी से शुरू करते हैं। आपकी इस साल की 2022 की आपके मुताबिक कौन सी सबसे अच्छी स्टोरी रही आपकी पसंद की? 1-2 जितना आप बता सकें। जितना पक्का। हाँ। I think the story that I feel was most important that I covered this year was in May when Jude and I went to Mirzapur to report on the death of a journalist, Pawan Jaiswal. So, hundreds of journalists die every year. It doesn't make the news, but we went to cover this specifically because it spoke of the larger problem of journalists in rural towns such as Mirzapur. So Pawan Jaiswal is a known journalist because he did a story, as you know, 2 years ago about how in the midday meals the government schools were giving roti namak as the meal, and he sort of uncovered the story, after which there was an FIR. There were a lot of state suppression that was done to suppress the story, but he did it anyway, and that led to a larger investigation. So this is sort of to tell the kind of reporter he was, but despite that, the kind of facilities that are available for journalists in rural towns are extremely less. So through the story of Pawan Jaiswal, we
spoke about the problem of journalists in rural towns, where forget being underpaid, they are sometimes not paid at all, you know. Their money depends on the advertisements that they bring, and medical insurance is a really far away reality. So, sorry, I forgot to mention, he had cancer and he was not able to get enough funds for the treatment. So his friends actually started a crowdfunding campaign also. And this is despite being a reporter who was you know, there was a lot of coverage around his stories, not just by the national media, internationally as well, when he broke the Roti Namak story 2 years ago. But despite that, he did not have the funds to, you know, pay for his treatment. So through his story, we spoke to a lot of other journalists about the problems that they face it's a structural issue, you know. So I think at Newslaundry, besides holding media accountable, we also do structural problems of media as, you know, it's a beat that we explore, which I think is very important because journalists talk about everything and everyone, but nobody talks about journalists and the problems that they face. So that was one story that Jude and I did, which I sort of was happy that we covered the story. पवन से मतलब मेरी भी बातचीत हुई थी उनके डेथ से पहले, और जब वो नमक रोटी का पूरा मसला आया था तो मैंने उनकी एफआईआर पे स्टोरी की थी। आप जानकर हैरान होंगे कि पवन को संस्थान से कोई सैलरी नहीं मिलती थी। उनको हर रोज़ 500 अखबार उनके घर भेजे जाते थे और उस 500 अखबार को उनको थोड़ा डिस्काउंट पे अखबार संस्थान से मिलता था और वो उसको बेचते थे और उससे 1 रुपया 2 रुपया जितना भी एक अखबार पे उनको मिलता होगा शेयर मुनाफा, वो उनका इनकम था रोज़ का। इसके अलावा वो रिपोर्टिंग करने के अलावा वो दुकान भी एक मोबाइल शॉप चलाते थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और तो वो दिल्ली आने वाले थे बीबीसी के इवेंट में, तो मुझे मिलना था, लेकिन मैं कहीं रिपोर्टिंग पे चला गया। फिर 2-3 महीने बाद पता चला कि उनकी डेथ हम उनसे फैमिली से भी मिले, दोस्तों से भी, एंड लाइक जर्नलिस्ट, लाइक दीज आर द बैकबोन ऑफ जर्नलिज्म. इवन द स्टोरीज दैट वी डू आर बेसिकली follow-ups of what is reported in a small newspaper in a rural town, but it only gets attention when we do it. So it spoke, I think, about a structural issue that needs to be changed from the roots of it are, not in a way that is really going to help moving forward. I think the journalism model itself needs to be restructured. Was it your first time in Mirzapur? It was. How was that like? It was interesting. I mean, the only impression I had of Mirzapur before was from the show, which the locals were not very happy about. But the people we met were extremely warm and wanted to speak about the problems, right? I mean, everyone was surprised that we were talking to the journalists instead of the other people, because people don't cover these stories, but they were really eager to share their problems and talk about what they go through. So, yeah. अनमोल, आप न्यूज़लॉन्ड्री में इसी साल आए, नेशनल दस्तक में थे आप उसके पहले, तो न्यूज़लॉन्ड्री में आने के बाद आपने कुछ ऐसी स्टोरी कवर की हमारे लिए जिसमें आपको पत्रकारों से बात करनी थी या पत्रकारों पे फोकस करना था? कोई ऐसी स्टोरी की आपने? नहीं, मीडिया स्टोरी तो मैंने एक ही की थी, जो मीडिया के मौलाना वाला किया था मैंने। जी, That was a very good story. हाँ, वो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। मुझे याद है एडिट मीटिंग में उस पर कितना चर्चा होती थी, ऐसे करिए वैसे करिए, और फिर आपने करी भी। तो वो एक स्टोरी थी जिस पर मैंने किया था, क्योंकि ये लोग एक ही कैरेक्टर है जो एक चैनल पे धर्मगुरु बन जाता है, एक पे स्कॉलर बन जाता है और एक पे किसी संगठन का प्रवक्ता बन जाता है। तो सबको इंटरव्यू किया था और पर्सनली जा के मिला था कि ये लोग कैसे हैं, मतलब पर्सनल लाइफ में और टीवी पे कैसे होते हैं। तो वो पूरी मीडिया स्टोरी तो वो एक ही थी, और अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं तो मीडिया में ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया। पर एक स्टोरी मैंने आते ही किया था, मतलब जिस मंथ मैंने ज्वाइन किया था उसी मंथ चरखी दादरी से रानीला गांव था। वहाँ पे क्या हुआ था कि जुलाई में एक गांव है रानीला, वहाँ पे शमशान जातियों के हिसाब से अलग अलग हैं। तो एक पतली सी सड़क जो है गांव से बाहर जाती थी और उस सड़क के दोनों तरफ शमशान थे, कास्ट वाइज थे। सबसे पहले ब्राह्मणों का था, फिर राजपूत का था, और वो सड़क सबसे लास्ट में जहाँ ख़त्म होती थी वहाँ पे दलित समुदाय का शमशान था। तो जब बरसात का मौसम था, तो जब गांव में दलित कम्युनिटी में किसी की डेथ हुई तो वो लोग जब गए शमशान तक तो उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय के बाद से जो रास्ता है उस रास्ते के बीचों बीच दीवार चल गई है, और वो एक बड़ी दीवार चल गई है और उनका एक्सेस ही नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ था चारों तरफ, अगल बगल से भी नहीं जा सकते थे। तो वो दीवार फांद कर लेकर गए थे, पूरी अस्थि को ले जा रहे थे, मतलब अर्थी को ले जा रहे थे। तो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो फिर बाद में अखबारों में खबर आई कि मामला सब सॉर्ट आउट हो गया। तो
एक दिन मैं ऐसे ही एक यूट्यूब हरियाणा का कोई लोकल चैनल था, उसको मैं देख रहा था, तो मैंने देखा नहीं अभी भी वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि जो प्रशासन की तरफ से जो काम किया गया था वो इनफ नहीं था। तो मैंने किसी तरह से कांटेक्ट जुगाड़े और उन लोगों से बात किया जिनकी दादी की डेथ हुई थी, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो जब मैं ग्राउंड पे गया और उन्होंने जैसे बताया, बाकी लोगों से बात किया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दिखने में लग रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि प्रशासन कह रहा था कि हमने बगल से रास्ता दे दिया है। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि इस चीज़ को हम शो कैसे करें, मतलब दिखाए कैसे, क्योंकि पहली नज़र में तो दिख ही रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व है। तो फिर हमने वहाँ के जो ठाकुर कम्युनिटी से उनसे बात की, तो हमने पूछा कि आप लोगों ने रास्ता बनाने से पहले क्या किसी तरह का कोई पंचायत वगैरह किया था, उन लोगों को पूछा था, बुलाया था कि हम बीच रास्ते पे दीवार चला रहे हैं और आप लोगों को दूसरा रास्ता देंगे। तो उन्होंने कहा कि उनको क्यों बुलाएं, वो ज़मीन हमारे बाबा की थी, मतलब किसी मंदिर की ज़मीन थी, वो तो पूरे ग्राम समाज की थी। तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारे बाबा की थी, तो उनसे क्या पूछना। देन मैंने सोचा अच्छा तो थोड़ा और बातचीत करते हैं। तो पता चला कि जो रास्ता दिया गया था एक्चुअली वो रास्ता टेम्परेरी था, क्योंकि ये जो रास्ता था ये पक्का रास्ता था, और जो बगल से दिया गया था उस शमशान, जो ब्राह्मण समुदाय का शमशान था, उसके पीछे से दिया गया था, क्योंकि इन लोगों को आपत्ति थी कि हमारे शमशान के सामने से इन लोगों की लाशें नहीं जानी चाहिए, ये प्रॉब्लम थी। तो फिर एसडीएम से बात हुई, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल कर आई। वो स्टोरी अभी भी है, कोई देखना चाहे तो देखे। जिंदा रहते हुए भी छुआछूत और मरने के बाद भी छुआछूत। काफ़ी मतलब वहाँ समझना बहुत टफ था कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि लग रहा था कि सब सॉल्व हो गया, एसडीएम भी कह रहा था कि सब सॉल्व हो गया है। तो वो है स्टोरी वीडियो। ऐसी स्टोरी करने के बाद मतलब आई वुड अज्यूम इफ़ आई वॉज द रिपोर्टर, मुझे थोड़ा मतलब 1-2 दिन के लिए मैं एकदम दुखी हो जाता, सोचता वगैरह वगैरह। लेकिन सबका कुछ कोप करने का तरीका होता है। हम लोग फील्ड में जाते हैं, कुछ ट्रॉमेटिक देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दुखी ही रहेंगे। हर रिपोर्टर का एक तरीका मिल जाता है जिससे वो अपने आप को वापस थोड़ा उससे उभर जाता है। तो आपका क्या तरीका है? एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था कि मैं गया, तो एक होता है आपको, मतलब हैं हम तो इंसान ही, इमोशन हमारे भी हैं, तो चीज़ें लग जाती हैं। तो मैं जब वीडियो में बोल रहा था ना, तो बार बार मेरे इमोशन हावी हो जा रहे थे। मतलब मैंने 8-10 टेक लिए उस चीज़ के लिए कि मैं टोन मेरा कम हो जाए, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव बात थी और थोड़ा सा निकल जाता था, बार बार निकल जाता था। तो उसको बहुत वो टफ था कि मतलब उसको प्रेजेंट कैसे करे कि ताकि उसमें मैं बायस ना दिखो, स्टोरी में कोई ना कह दे कि तुम तो बायस हो। ये बहुत मुश्किल होता है बताओ रिपोर्टर कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करें। कई बार जैसे कोविड में लगता था सामने मर रहा है, फिर आप विजुअलाइज करते हैं अपने को, फिर अंदर से आता है यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद डर लग रहा था अगर हमारे साथ हो गया तो कौन ले जाएगा, पर आपको उसको रोकना है, फिर बोलना है। एक्चुअली उसमें हुआ ये था कि जिस लड़के की दादी की डेथ हुई थी, जब वो पुलिस के पास गया था, तो उसको पुलिस में जब उसने कंप्लेन कर दी, उसके कुछ दिन बाद चौराहे पे मतलब अपर कास्ट के लोगों ने उसको पीट दिया। वो ऑटो चलाता था। तो जब वो कंप्लेन लेकर गया पुलिस के पास, तो पुलिस वाले ने फिर उसको पीट दिया। उसके हाथ पे पूरी पट्टी बंधी हुई थी। मैं उसको फॉलो अप करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर जा नहीं पाया वो स्टोरी। तो इतना मतलब बहुत सारे लेयर्स थे उसमें, सारे लेयर्स एक बार में नहीं कवर हो पाते कभी कभी स्टोरीज में। और आप दोनों की स्टोरीज, आपकी स्टोरी टेक्स्ट स्टोरी थी? टेक्स्ट एंड वीडियो। टेक्स्ट एंड वीडियो, तो दोनों स्टोरीज, आई मीन so far we've been talking about a lot of text stories, but anyone who wants to watch especially Anmol's story and even watch Tanishka's story can log on to YouTube. आपको टाइटल याद है उस वीडियो का? क्या नाम है स्टोरी का? शमशान पे जाति की दीवार। वाह क्या बात। थैंक यू both of you for joining us, but before you leave can you tell us आपका recommendation क्या है हमारे listeners के लिए? मैं तो हिंदी बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो तो मैंने एक हिंदी की अभी नॉवेल पढ़ी है, उसका नाम है मोनालिसा हंस रही थी। तो अशोक भौमिक की किताब है ये, एक पेंटर की कहानी है। तो एक्चुअली इस किताब का जो मतलब नाम है, ये नाम देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये नाम क्या है। तो जब लास्ट तक मैं पढ़ गया, मतलब लास्ट के 2-3 पेज बचे थे, तब मुझे लगा कि अच्छा ये नाम क्यों है, कि मोनालिसा क्यों हंस रही थी। एक्चुअली उस पेंटर की वो पूरी जर्नी है कि कैसे वो एक आजमगढ़ से उसकी स्टोरी शुरू होती है
और वहाँ से फिर उसमें पेंटिंग की जो मॉडल्स होती हैं उनकी भी कहानियाँ हैं। फिर पेंटिंग में कैसे पेंटिंग कॉर्पोरेट में जाता है और कैसे उसके एग्जीबिशंस होते हैं, उसके पूरे पीछे की पूरी राजनीति। और बेसिकली उसके ज़रिए वो नॉवेल ये स्थापित करती है कि कैसे आज जो लोग बड़े नाम हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं या बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके पीछे किस तरह कॉर्पोरेट काम करता है, किस तरह लॉबिंग काम करती है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसका पता चलता है कि वो बहुत बड़ा पेंटर बन जाता है और उसकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। और बाद में उसको पता चलता है उसकी पेंटिंग एक स्ट्रेटजी की तरह उसका दोस्त खरीदवा रहा था ताकि वो बड़ा स्टार बन सके। और देन जब उसको ये सब कुछ पता चलता है, उसमें और भी साइड में कैरेक्टर सारे स्पॉइलर रिवील कर रहे हो। तो पब्लिकेशन से आई है ये? पब्लिकेशन मुझे याद नहीं है, मतलब स्टोरी लेकिन बहुत अच्छी है। तो एक्चुअली वो मोनालिसा उस पेंटर पे हंस रही थी। वेरी इंटरेस्टिंग। तनिष्का? बहुत मशहूर पेंटिंग भी है ना? हाँ, पेंटिंग की हाँ, ही बात है, जी, मोनालिसा उस पेंटिंग की बात थी। लियोनार्डो दा विंची was it? हाँ, उसकी भी स्टोरी है उसमें कि कैसे। आपका I want to give some recommendation? light recommendations because it's the festive season and Okay. we should just take a break from heavy things. One is a poem by Maggie Smith called Good Bones. And I'm not going to say what the poem's about. It's a very heartwarming and heartbreaking short poem that I would recommend. And another is a podcast called Our Last Week, which I have chewed everyone who knows me's brains about. So I'm going to just publicly declare my love for it and recommend everyone to hear it too. It's a weekly podcast by Anuva Pal and Kunal Roy Kapoor, and they take on conundrums from listeners and really, really small, stupid conundrums, and they just have like really funny, weird discussions on it. So it's a really fun podcast. I would recommend everyone to hear it. Wow. Thank you both of you for joining us, you. and may you do even bigger and better stories in the coming year. Thanks. So now we have Aditi and Alan with us. Aditi also joined us this year. She covers tech and knows a lot about things which I can hardly spell. You know, all the tech concepts and everything. It's just when we have edit meetings, it's a sight to watch Aditi explain what some things mean. And Alan, of course, also joined us most recently. I think if Newslaundry was a family, you'd be the baby. Yeah, Of course. because you're also very young. So also that's one way to put it. And Alan, you're from Kerala. Yes. Are you? So and you've just moved to Delhi for this job. Yeah. So before we talk about any story, tell me first, how is it reporting in Delhi? You've just started in journalism. I think this is your initial year or two. Yeah, this is my first permanent job. So Yeah, and you've moved for it, changed cities. Yeah. And I mean, we've spoken about stories, and you tell me how sometimes it gets, really difficult trying to communicate with people in Delhi. Tell me about how that goes, because some of us take this for granted. We don't face these problems. But how has it been for you? So it's like even at the very beginning, I was a bit more optimistic on managing the language and stuff. I thought I'll be able to do it because like I thought you learn within some time, because I knew I was able to understand the language. But then when I went to ground, things weren't that same, because like in ground when you go, you don't see the kind of people who communicate in the particular way you heard before. It's not like what you listen in movies or something. It's completely different. So the very difficulty in understanding their language was one issue that I faced. And then I feel like it takes time. It's not like you learn this with 1-2 months or something. Right. So I feel like maybe with 4-5 months of experience, I might learn the language. But still, I feel I won't be that good with the language, because I know there are limitations, because I come from Kerala, and then we hardly speak any other language than Malayalam in our hometown. Right. There's a very, very good book that won a prize recently. It's called Delhi, a Soliloquy. Yeah. And it's written from a perspective of a Malayali family. The people who have settled, the Malayali families who have settled in Delhi, right, how they are managing. Also, exactly. It's about a particular, they have also mentioned about a journalist who was working here during emergency period. Wow. So how is life in Delhi and all those things are like very well explained. And then it's very
like a good read for anyone who is interested in knowing how Malayali will probably adjust in Delhi or something. We like already have a recommendation from you then. Yeah. Okay, Aditi, what was your favorite story this year and why was it Wire and Meta? That's an interesting way of asking the question. But yes, I think that was the story that I spent the most time on after joining Newslaundry. Right. It's just been 4 months and that happened, and it combined what Newslaundry does, which is media reporting, and what I do, which is tech reporting. So it was the perfect balance of the two and a good way to, in a way, jump into the thick of things. And just the way it unfolded, it was kind of unprecedented for Indian media as well as tech media around the world. And the audacity with which certain things happened, whether it be how Wire went about reporting things or the alacrity with which the BJP IT cell head filed an FIR against them. All of that kind of took everyone aback. So that was there. Tell me, when that story came out, the first Wire story on Meta, how long did it take you to think that, okay, something is sus? How long did it take you to find out that something is suspicious about this? Because I read the story, I was like, wow, this is a big story. And then I think 4 or 5 hours later after that, someone asked me, what do you think of this? And I'm like, why are you curious? And that person told me, this and this. This seems a little off. So it took me 6 hours at least to first sense that, okay, there's something going on in that way. How long did it take you? I confess it took me longer than that. Okay. And part of it was because the first story came on Monday. And Wire is a respected media brand. There's no doubt about it. They will do their due diligence. They have reported on Pegasus. They've been targeted by Pegasus. So you expect them to have certain kind of technical know-how, technical chops to report on it. And after the first story, I don't think any of the tech reporters were actually questioning the veracity of it. Right. It's after the second story, which is when they said they had a leaked Andy Stone email, that people were like, hey, this is too good to be true. Right. And that's when I also thought that, okay, they seem to have contacts, but this is entirely too good to be true to just keep toppling out of a closet, so to say. Right. And why are these people going to this tiny Indian media house instead of, say, going to a Wall Street Journal, which had a history of reporting on that particular issue and that particular program called Crosscheck, or say to a New York Times or a Washington Post, where the journalists have a direct line to these executives in Facebook Meta. Right. So, and then it's astounding to me that Wire did not take into account all this vociferous and loud criticism everywhere that, hey, things aren't adding up. And they kept on doubling down, tripling down, quadrupling down that we have the facts. Yeah. So, yeah. They haven't aged well, have they? Those tweets, those statements. They haven't. They really haven't. And tell me, we are not tech reporters, but what is the grapevine in the tech reporting circles about how, of course, we know what they thought because people were tweeting it, but now that some time has passed and you can look at it with some window of retrospection, how do Indian tech reporters make of a fiasco like that? So one of the things, I think this is something we discussed in a previous episode of Reporters Without Orders, that when you're covering big tech companies that aren't based out of India, you have to understand that Indian reporters do not have a lot of access to the decision makers because the decisions aren't made in India. They're made in the United States. Some of them might be made in Ireland, which is where a lot of them are headquartered for the purposes of Europe. They take inputs from their Indian teams, but the decisions are, in a way, made by the global operations team. That's how it's called. So this raises questions about the credibility of all tech reporters in India. And some of the tech reporters I personally know and whose work I follow, they've been doing a stellar job, not just questioning big tech based out of the United States, but also tech companies based in India that believe in technological determinism, that are trying to impose certain technological solutions to social and cultural problems. So everybody's credibility gets eroded because of perhaps the misdeeds of one media house. And tech reporting isn't necessarily like media reporting or reporting on communalism, which is where you have all these super noisy news channels muddying the waters.
unfortunately, they really don't understand tech reporting. So Right. either they steer clear of it, or they misreport it to such an extent that nobody pays them any attention on tech Right. reporting. Right. So which is why people who do report have a higher burden of responsibility, I would say. Alan, tell us about your stories, and have you come to this realization yourself at any point while you're doing your stories that sometimes we know something is happening on the ground, but we can't. We have to make sure, how do we put that out as a story? How do we have multiple sources, corroborations? How do we make sure we make that trek of taking a reality and turning into a copy? When you're on the ground, have you faced that crisis yet? So I haven't done much ground reports, so I'll just stick on to one of the reports that I've done. That's not a ground report. Sure. It's basically a protest that's happening in Kerala. It's called the Vidinyam Port protest. It's happening from a long time. So media houses for a long time had coverages on it, saying that this particular thing happened on this particular date and what are the things that happened during the protest. And something interesting that I found from the media that is covering of the Vidinyam protest, that is inside Delhi, or the national medias, the mainstream medias, News 18 and other medias, I found it a bit different, because the reports that came only after the day the protest turned violent. So I was thinking, like, I was going through all the reports in Kerala inside, like how the protest is going. Since I'm not in Kerala, I was watching a lot of television news as well as ground reports by online medias. Like, there are good platforms like True Copy Think, The Q. So one thing I found, that even in case of TV reporting and online, there's a difference. TV reports have just what's happening in the ground, but there is no particular investigative idea on what's actually happening. So one thing interesting there is, like, in TV reports just says that this is happening, the protest is going on, etc. But then the major reason behind the protest is because since it turned violent, is that people were living in their cement shelters for around more than 100 days. So few journalists in online medias and other groups went there and then started investigating what are the conditions inside the particular cement shelters, which is like very worse, and then there were no reports on it. On the same time, you find reports in News 18 and other things saying that this is a protest that is made by the very Christian outfits, just want to make it like a communal, they just want to plan this whole protest as a communal thing. Right. At the same time, there are also pro-protesters, which are like Hindu groups, NSS, like high caste Hindu groups were involved. They were saying like the port should come up, and it's a good project, etc. But then you should think the fact that Adani is growing from past 2-3 years, the amount of money they are gaining, and then few people are supporting a project that is built by Adani itself. Right. So it's very interesting how these particular ground reports are reported in national media, and then they have a huge wide coverage all around India. People are watching these channels. Yeah. So I think that's something like even the channel should think before they report on such issues. Yeah, but I think there's a media story there. On you take number of events and you see how local outlets in Kerala cover it and how the national media covers it, especially the segment of the mainstream channels. Before you guys take leave, can you tell us what you'd like to recommend our listeners and our viewers? Alan? So there's this recent Malayalam movie called Arip, Declaration in English. So it speaks about two couples who have moved to Delhi NCR to find jobs. So actually they were planning to go abroad, so they have to stay here in NCR for some time. They were working in a gloves factory. So their conditions, how they are managing, and then few like you must probably watch the movie because it's like how a person outside of Delhi, what are the kind of things they come through in life. Right. All those things, yeah. Sounds very interesting. Yours? I'm going to recommend something more mainstream. One is Glass Onion. It's available on Netflix. Right. I don't know if anyone else has watched it yet. If you haven't, please watch it. It's especially after everything that's happened with Twitter and Musk, it's just a bit too on the nose.
and goes on to show that the director and the writers have been quite prescient about everything. Right. The other one I'm going to recommend is Top Gun Maverick. For that, please, I know about the politics of Tom Cruise, Scientology. Yes, I do know all of it. But for Top Gun Maverick, please use the biggest screen you have, increase the brightness, turn off the lights, and just be ready to go on a ride. Yeah. Forget about the story, forget about the politics of United States defense industrial political complex. Yeah. Forget about all of it. Just the stunts, the fact that they're doing them on their own, it's mind-blowing. The jets and everything, right? I know some of the... I watched it in theater. I watched it in IMAX. I was like, I'm going to splurge for this one because... and I'm glad I did. Right. So there's that. And the third one I would recommend is Kala. It's on Netflix. Story, okay, it could go either way. But the music, उसके गाने इतने अच्छे हैं. बट मेरे फादर ने मुझे बोला है कि मुझे वो इसलिए अच्छे लग रहे हैं बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा पुराने हिंदी गाने नहीं सुने. तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे आपको कौन सा अच्छा लगा उसमें गाना? नजरिया ना फिर. अरे मुझे वो बिखरने का शौक है मुझे, जो वरुण ग्रोवर ने लिखा है. हाँ, शौक. वो भी अच्छा है. वो अच्छा है. बट नजरिया एंड स्पेशली जब मूवी के कॉन्टेक्स्ट में देखो, जब ये मतलब जब सिंगर का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब जो इरफान खान के उसमें बेटे हैं, जब वो नजरिया को गाते हैं, मतलब गाते तो वो नहीं है, लेकिन वो जब वो वाला सीन मुझे बहुत प्यारा लगता है. एंड वो मूवी इतने सुंदरता से बनी है ना, आप उसको कहीं भी पॉज कर दो, फ्रेम का प्रिंट आउट लो, उसका फ्रेम करो और अपनी दीवार पे टांग दो. It's just a stunning movie through and through. बहुत beautiful. So गाने बहुत अच्छे हैं. बहुत अच्छे. Okay, thanks a lot Aditi and Alan for joining us. Thanks for having us. Very happy New Year to both of you. Happy New Year to you and to our listeners, readers, viewers. Am I missing out on any? Listener, viewers, readers. Yeah. Subscribers. हाँ, उन्हीं की वजह से तो हम हैं यहाँ पे. अब हम 3 हैं, मैं, आयुष और हमारे नए मेहमान हैं अश्विन. तो बातचीत अश्विन से शुरू करते हैं. अश्विन को 2-3 साल हो गए, हमारे बाद आए हैं अश्विन, तो इनको समय हो गया. जी, समय हो गया. तो आपकी इस बार की कौन सी आपको लगता है कि अच्छी स्टोरी रही, 1-2 उस पर हम बातचीत करेंगे. हाँ, तो शुक्रिया बसंत और आयुष मुझे बुलाने के लिए. अब तीनों, मतलब आप दोनों के बाद सबसे पुराना शायद मैं ही हूँ अभी तक यहाँ पे. तो मैंने इस साल स्टोरी में ज़्यादातर सभी रिपोर्टर के साथ स्टोरी किया अभी तक, तो मतलब आप दोनों के साथ भी और जो चले गए उनके साथ भी, और जो 2 नए हैं उनके साथ नहीं हुआ, सिर्फ एलन और अनमोल. 2 स्टोरी जो डिस्कस करना है, वो एक स्टोरी है कि जो दूरदर्शन पे एक स्वराज सीरियल करके आया है, जो भी रिसेंटली चालू हुआ है 15 अगस्त से, जिसका काफ़ी प्रमोशन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बाकी जो मिनिस्टर्स है बीजेपी के, उन्होंने किया. तो एक उस पर, और दूसरा अभी इस साल सबसे बड़ा जो चेंज हुआ मीडिया में, वो NDTV का टेक ओवर हुआ अडानी ग्रुप के द्वारा. तो हम मेरी 2 स्टोरीज़ हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, इन दोनों स्टोरीज़ पे. स्वराज, जो भी हमारे दर्शक और जो भी पाठक वो जानते होंगे कि स्वराज नाम का एक सीरियल जो दूरदर्शन ने शुरू किया, उसमें हमारे आज़ादी के जो नायक हैं, खासकर सरकार ये कहती है कि जो गुमनायक नायक हैं, जो नई सरकार, अनसीन हीरो जो हमारी नई सरकार वो हिस्ट्री में थोड़ा हस्तक्षेप कर रही है, तो अनसीन हीरो की कहानी लाने की, उसके विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हुए. मुझे याद है आयुष, मैं बाबरपुर की तरफ, वो जो पूर्वी दिल्ली है, उधर घूम रहा था, तो एक अस्पताल है, शायद राजीव गांधी नाम है या लाल बहादुर शास्त्री, कुछ उसका नाम है, उसके बाहर बोर्ड देखा, बहुत बड़ा स्वराज का लगा हुआ था. अश्विन, उसमें आपने 2 स्टोरी की है, मुझे अगर ठीक से याद है तो. एक तो कि उस जो सीरियल है उसको बनाने के लिए जो उसकी रिसर्च टीम है, उसमें कौन लोग शामिल थे, और मैक्सिमम RSS के लोग थे उसमें, और उसमें ज़्यादातर का हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था. जी, तो आप वो बताइएगा, मतलब आप, और जो उसके बाद जो हुआ आप बताइए. तो जैसा बताया आपने बसंत, 2 स्टोरी थी. पहली स्टोरी ये थी कि जो स्वराज सीरियल बनाया गया था, जो रिसर्च कमेटी बनाई गई, उसमें 7 लोग थे, और वो सभी का बैकग्राउंड RSS और बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे. 2 तो RSS की जो मैगजीन है उसके दोनों हिंदी और इंग्लिश के एडिटर थे. एक प्रोफेसर सिर्फ थे जो हिस्ट्री से विद्वान थे, बाकी किसी का हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था. एक थे वो जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर, जो RSS का ही थिंक टैंक है, उसके एक निदेशक थे. एक दूसरा थिंक टैंक था जो RSS से जुड़ा हुआ है, वो उसका काम कर रहा था. जवाहरलाल कौल, जो सीनियर जर्नलिस्ट और बीजेपी से कितने क्लोज सब जानते हैं, वो थे.
एक व्यक्ति जो हीरामन तिवारी हैं, जेएनयू के जो हिस्ट्री के इस समय डीन हैं, वो एक हिस्ट्री के थे। लेकिन हीरामन तिवारी जी का भी जो स्पेशलाइजेशन है वो हिस्ट्री इंडियन इंडिपेंडेंस में नहीं है। उनका है कि जो वैदिक टेक्स्ट होता है उसके विद्वान है, संस्कृत भाषा के विद्वान है वो। उनका हिस्ट्री में मतलब कि इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोग मेंबर्स थे उसके। तो हमारी पहली स्टोरी यही थी कि ये लोग से जिनको बुलाया गया, इन्होंने कैसे हिस्ट्री को अनफोल्ड किया है। मतलब जो स्वराज सीरियल का जो थीम था वो था अनसिंग हीरोज़ को लेकर। तो 1498 से लेकर 1947 के बीच में जो हमारे गुमनाम नायक थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया था, जिन्होंने त्याग दिया, तो उनको लेकर ये स्टोरी थी पूरी। और मतलब जो हिस्ट्री के विद्वान जिनसे मैंने बात की स्टोरी में, क्या उन्होंने कहा कि हमारे जो आज़ादी को लेकर जो सोच डेवलप हुई कि आज़ाद देश के लिए आज़ादी लड़ना है, वो बैटल ऑफ पल्सी के युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, तो उससे पहले तो हमारे दिमाग में कोई था ही नहीं कि हमें आज़ादी चाहिए तो किस बात की आज़ादी। तब तो हमारा देश आज़ाद था, ना किसी के राज था। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जब कलकत्ता वेस्ट बंगाल पर लड़ाई की, उसके बाद से उन्होंने कब्जा करना शुरू किया, तब आज़ादी की एक हमारे दिमाग में सोच आई थी कि हमें आज़ाद होना है। तो हिस्ट्री को मोल्ड किया गया। फिर जो उसका प्रोमो भी आया था उसमें भी जो इनका फेवरेट है जवाहरलाल नेहरू जी टॉपिक, उन्होंने गायब कर दिया। उसमें सावरकर को दिखाया उन्होंने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं है। तो ऐसे जब इन्होंने फोल्ड किया, हमने इस पे स्टोरी की। उसके बाद सेकंड स्टोरी हमने ये की थी कि इस सीरियल को देखने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 बार, एक गुजरात में और एक मन की बात में तारीफ़ की कि देखना चाहिए। फिर होम मिनिस्टर ने इसका प्रोमो लॉन्च किया था। सारे मिनिस्टर्स जो हैं और बीजेपी के एमपीज़ हैं, संसद भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग की इन लोगों के लिए की गई थी। ट्वीट भी किया था सबने। प्रमोट भी काफ़ी हुआ था। मतलब जैसे आपने बताया वैसे ही इन्होंने कार पे स्टिकर्स लेके लगाए थे, बोर्डिंग्स लगाए थे हर जगह। पूरा डीडी का ऑफिस के आसपास सब स्वराज ही था। तो उस सीरियल को करीब अगस्त से लेकर 4 महीने चला था। हमने दूसरी स्टोरी ये की कि उस सीरियल के प्रमोशन में करीब 9.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, मतलब 10 करोड़ रुपए प्रमोशन के नाम पर। और साथ में उसके बनाने का कॉस्ट एक एपिसोड का 47 लाख रुपए है, एक एपिसोड के लिए गवर्नमेंट दे रही है, प्लस टैक्सेस। तो 18% जीएसटी लगा के टोटल 55 लाख कुछ रुपए हो रहा है। उसके हिसाब से जोड़ दिया जाए तो करीब 50 करोड़ रुपए सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट है। उसके अलावा रिसर्च टीम जो बनी है वो अलग कॉस्ट है। ये हर साल चेंज करवा रहे हैं, हर दिन उसमें थोड़ा मसाला लाने के लिए चेंज भी करवा रही है। तो जो चेंज हो रहा है उसका भी कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने करीब 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, विथ इंक्लूड एडवर्टीजमेंट ऑल्सो। अब सोचिए 70 करोड़ खर्च करने के बाद भी टीआरपी नहीं आ रही है। टीआरपी इतनी कम है कि जो बाकी चैनल्स, बाकी जो सीरियल्स डीडी पे आते हैं उनसे भी इनका नीचे है। प्रोडक्शन क्वालिटी में लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है। मैंने भी बात की कुछ लोगों से, जब खुद डीजी के जो डीडी मतलब डीडी के जो डीजी हैं उस पहले प्रसार भारती के सीईओ भी थे, उन्होंने तो अपनी डिफेंड किया ऑब्वियसली। उन्होंने कहा कि क्वालिटी है बहुत अच्छी है, अब लोग नहीं देख रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। शायद लोगों को मसाला ही पसंद हो, जैसा डेली शो और चैनलों पे आता है। तो एक हम देख सकते हैं कि पब्लिक जो मनी है उसका मिसयूज़ कैसे है। साथ में एक अपना जो एक कहा जाता ना कि भारत एक खोज करके एक सीरियल आया था, वो एक खोज, मतलब वो सीरियल एपिक सीरियल था जिसको लोग अभी भी याद करते हैं। उसी को थोड़ा सा इन्होंने आगे करके, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू की किताब पे था, तो शायद इतिहास बदलने की कोशिश जो कहते हैं ये लोग हमेशा होती है। तो पैसे, वेस्ट ऑफ मनी तो है ही, पब्लिक मनी, साथ में इतिहास बदलने की भी कोशिश है जो अब तक फ्लॉप साबित हुई है। एनडीटीवी की बात करते हैं जी। आपने उसको मतलब काफ़ी कवर किया है। आप डेवलपमेंट्स जो होती हैं आपको पता होती है, यू आर ऑन द बीट। डज योर कवरेज ऑफ एनडीटीवी इज ऑल्सो, डू यू ऑल्सो वांट टू कवर दैट स्टोरी? बिकॉज एक समय में आप एनडीटीवी में थे, आपने यू वर्कड विद प्रणॉय ऑन द इलेक्शन टीम। टेल अस द पर्सनल साइड ऑफ थिंग्स. व्हाट इज योर पर्सनल इक्वेशन विद दैट चैनल एंड What did you learn there? And मेरा जर्नलिस्टिक करियर की शुरुआत ही वही थी, मतलब पहली नौकरी वही थी, वहीं से सीखा हूँ। जो भी सीखा अभी तक वहीं से सीखा था। बतौर अगर हम पर्सनल इक्वेशन बात करें प्रणॉय से, सभी एनडीटीवी के एक्स कॉलीग का, तो सब लोग तारीफ़ करेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो कभी प्रणॉय रॉय या राधिका रॉय की बुराई करे। शायद कभी उनका एटीट्यूड या कभी बिहेवियर रहा ही नहीं कि आप शिकायत का कोई मौका दें। मेरे साथ हुआ था एक बार कि उनकी बुक का काम चल रहा था, उन्होंने एक बुक लिखी द वर्डिक्ट के नाम से। उसमें दोराब सुपारीवाला और वो 2 को ऑथर हैं। उसमें मैंने ऐसे रिसर्चर काम किया था। तो प्रूफ रीडिंग के लिए अशोका से पॉलिटिकल साइंस के कुछ बच्चे आए थे, तो उनके साथ हम भी बैठे थे उस रूम में, प्रूफ रीडिंग कर रहे थे कि क्या गलतियाँ हैं। उस पर उन्होंने कहा कि सब लोग अपना इंट्रो बताइए। तो मुझे तब तक नहीं जानते थे, मैं बस मेल करता था उन लोगों को, लेकिन पर्सनली नहीं मिले थे।
तो मैं भी बैठा था, फर्स्ट मैं बैठा था, फिर यहाँ से सब लोग नंबर थे, तो मैंने भी इंट्रो दिया, मैंने बताया कि हम अश्विन वर्किंग। तो तब तक मेरे जो बॉस डॉक, ये हमारे साथ ही काम करता है, आप नहीं जानते होंगे, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फर्स्ट टाइम उन्होंने सॉरी बोला उस समय। उसके बाद जब एक राउंड हुआ फिर सॉरी, फिर मैं नीचे उनसे टकराया फिर सॉरी, फिर जब वो गेट से जा रहे थे तो आई एम रियली सॉरी। तो एक आप देख सकते हैं ना, जो इतना क्या बोलें उसको, रिस्पेक्ट दूसरों के लिए। उनका ऐसा था कि अगर गार्ड आगे होके ना बोले सर गुड मॉर्निंग, वो खुद ही बोल देते गुड मॉर्निंग। मतलब गार्ड को बोलते तो मैं तो एम्प्लॉय था मान लीजिए, बाकी और भी सीनियर एम्प्लॉयज है, सबके साथ उनका बिहेवियर ऐसा ही था। तो न्यूज़ रूम में भी उनका प्रेजेंस था, काम लोग करते थे। और मतलब मेरे हिसाब से तो ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर और राधिका रॉय का जो भी अभी तक का वर्किंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत अमेजिंग रहा। मतलब कभी भी किसी पे चिल्लाते नहीं थे, गलती भी होती थी तो बस चिल आउट करके ठीक है जाने दो, सुधार लो, ऐसा कर लो, लेकिन कभी चिल्लाते नहीं थे कि तुमने क्या गलती कर दिया। जनरली होता है कि जब आप चैनल के मालिक हो प्लस एडिटर हो तो वह एक अलग ही बिहेवियर रहता है, क्योंकि आपको टीआरपी भी लाना है, आपको चैनल भी चलाना है, आपको कंटेंट भी देखना है। वो बिहेवियर इनमें नहीं था कभी भी। कैरावैन की जो लेटेस्ट स्टोरी है इंडिया टुडे ग्रुप में, उसमें एक बहुत बढ़िया पैराग्राफ है वेयर इट सेज दैट इंडिया टुडे में चिल्लाने का साइकिल कैसे होता है। तो पहले कलीपुरी राहुल कंवल पे चिल्लाती थी, फिर राहुल कंवल निकल के अपने रिपोर्टर्स पे चिल्लाता था, लेकिन एनडीटीवी में ऐसा माहौल नहीं था। सो यही सेम बात मतलब आप पढ़े, और साथ में मैं एक स्टोरी जो कर रहा हूँ ईयर एंडर, उसमें मैंने जो फॉर्मर कॉलीग से बात किया एनडीटीवी के, उसमें से कुछ, क्योंकि जब एनडीटीवी इंडिया बना था वो 2003 में चालू हुआ, तो उस समय हिंदी के चैनल जी था और आज तक था। तो जब चैनल लॉन्च हुआ तो एनडीटीवी ना आज तक और जी से लोगों को लेके आई, जिसमें दिबांग आए यहाँ पे मैनेजिंग एडिटर बन गए, सबसे पहले मैनेजिंग एडिटर वही थे। तो उनके साथ आज तक ही काफ़ी लोग आए थे। तो कुछ जर्नलिस्टों ने जिन्होंने कहा नाम नहीं मत बताना, तो उन्होंने कहा कि मैं आज तक में था तो वहाँ चिल्लाने की प्रवृत्ति थी, शुरू से ही थी, जैसा आप बता रहे हो वो शुरू से ही था वहाँ पे आज तक में। तो जब वो यहाँ आए तो यहाँ इतना चिल माहौल, कोई बोलने वाला नहीं, कभी कोई चिल्लाने वाला नहीं, जो स्टोरी ये करना चाहते थे उनको आज़ादी मिली। वो बताते हैं कि उन्होंने हेल्थ में काम किया, जिसमें हेल्थ में पहले लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इन्वायरमेंट तो बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था। माइनिंग में काम किया उन्होंने, आईटीआई पे काम किया, तो बोलते थे ये सब अपॉर्चुनिटी सिर्फ एनडीटीवी में मिली। और वहाँ वो शाउट वाला माहौल नहीं था जो आज के समय में माहौल हो गया कि हर चैनल में चिल्लाने की एक आदत सी है, जो चिल्लाएगा नहीं उसको टीआरपी नहीं आएगी। अश्विन, बिफोर यू गो आप हमें बताइए आपका रिकमेंडेशन क्या है जाते जाते? मेरा तो एक ही है, मैंने कला मूवी देखी है, तो शायद सभी को देखना चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगी वो मूवी, गाने भी अच्छे थे और पूरी मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे। आपसे पहले जो अदिति थी उनका भी वही था, तो कुछ और बताएं। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि कला बोलना है। मैंने हाल फिलहाल में एक डॉक्टर जी देखा है जो बसंत आपने भी देखा होगा, तो खाकी भी देखा है। मेरा बस पहला रिकमेंडेशन तो कला ही है, क्योंकि लिखने वाले को बड़ा भारी पड़ जाता है लिखना रिकमेंडेशन, तो कला देखिए प्लीज़। तो काफ़ी बात हो गई लोगों से उनके स्टोरीज़ के बारे में, आप अब अपनी स्टोरीज़ क्या बताइए। और आप अपनी गुजरात की स्टोरीज़ की बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने हर जगह गुजरात की स्टोरीज़ के बारे में बात की है। हाँ, तो एनीथिंग दैट डज नॉट इन्वॉल्व गुजरात, टेल अस व्हाट वाज योर फेवरेट स्टोरी ऑफ 2022? मेरी 3 स्टोरी है पर बात 2 ही पे करेंगे। एक रामदेव, जो बाबा रामदेव हैं पतंजलि के, उन पे मैंने एक सेना किया था। उसकी जो तीसरी स्टोरी थी, जो मैंने ये पता लगाया था कि कैसे केंद्र सरकार ने लेटर लिखा और पतंजलि के कोरोनिल को कोरोना के सपोर्टिंग दवाई का वो मिला, लाइसेंस मिला वहाँ से, उत्तराखंड से। दूसरी स्टोरी मीडिया स्टोरी है दोनों। एक तो अभी हाल ही में मैंने किया था कि कैसे आज तक और इंडिया टीवी ने एक भाजपा के उस कंटेंट को जो भाजपा ने बनवाया ही है प्रचार के लिए, प्रधानमंत्री की छवि को और मजबूत करने के लिए, उसको न्यूज़ के रूप में दिखाया। और ऐसी ही स्टोरी हमने किया था, इससे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल था उसको करना, जो अभी अश्विन चले गए, मैंने और अश्विन ने किया था कि कैसे दूरदर्शन अपने शो में उन लोगों से बात कर रहा है जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, मेरठ में अलग अलग जगहों पे जाके, और हैं वो बेसिकली भाजपा से जुड़े हुए, लेकिन टीवी चैनल बता रहा है डीडी कि ये आम लोग हैं। तो इसमें तो थोड़ा आसान था जो हमने अभी किया, ये भी थोड़ा 2-3 दिन लग गया मुझे निकालने में कि ये भाजपा का कंटेंट है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था कि आप मेरठ में कोई आदमी है, कोई व्यापारी है, आप उसके बारे में पता लगा रहे कि उसका भाजपा से कनेक्शन क्या है। तो ये 3 स्टोरी। आई लव दैट स्टोरी। मेरे को याद है आपने और अश्विन ने वो स्टोरी की थी, एंड द ग्रेट इन्वेस्टिगेटिव पार्ट ऑफ दैट वाज दैट यू सॉ समवन ऑन टीवी एंड
the process from seeing someone on TV to getting that person's number, where he lives, and then talking to him and then fact checking it, that's only something that is quality journalism can bring out. लेकिन आपने जो पहली स्टोरी की थी रामदेव वाली, आप और मैं सेकेंड वेव के समय हरिद्वार में घूम रहे थे कुछ दिन, तो हम गए थे बाबा रामदेव के आश्रम में, एंड वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन वो समय भी ऐसा था. लेकिन मुझे याद है एक बड़ा सा कैंपस था खाली, हम बिल्डिंग जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, एंड पीपल वर सो ओपन, एवरीवन वाज ओपन टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. वहाँ कुछ ऐसा डर नहीं हमें लगा. लेकिन क्या वो समय था जब आपको लगा कि हाँ, रामदेव पे स्टोरी हो सकती है? मेरे बहुत पहले से मन था, क्योंकि मैं मतलब देख रहा था कि कैसे वो उनमें बदलाव जो हुआ था, राजनीतिक रूप से जैसे वो बदलाव हुआ था, कैसे मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है. और हमारे से पहले हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विज्ञापन देने का काम पतंजलि करता है. तो कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, अभी हाल ही में खबर थी कि नेपाल में पतंजलि के प्रोडक्ट पे बैन लग गया, लेकिन ज़्यादातर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर रिपोर्ट नहीं किया. तो हमसे पहले तहलका में 2011-12 में एक स्टोरी आई थी. मनोज रावत जर्नलिस्ट थे और बाद में वो केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक भी हो गए. उन्होंने रिपोर्ट किया था और वो आखिरी उसका हेडलाइन मुझे याद है, काले कारनामों वाले बाबा ऐसे करके था. तो तब मैं कॉलेज में था, तो पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में था कि ऐसी स्टोरी करनी है जो कुछ सच लाए, जो छुपाया जा रहा है, जो ब्रांडिंग हो रही है. फिर ऑफिस ने मौका दिया और फिर हम चले गए, और 3 पार्ट है उसका, तो 3 पार्ट में किया. राइट. और दूसरी स्टोरी में आपको मतलब क्या ऐसा उसका हिस्सा था या काम करने का, या जो उसकी फाइंडिंग्स थी, व्हाट पार्ट ऑफ द सेकंड स्टोरी आर यू प्राउड ऑफ? देखो, दूसरी स्टोरी जो थी वो मैं थोड़ा 2 मिनट लेके प्रोसेस बताऊंगा. शायद मैंने पहले भी बताया था कि हम सब प्रेस क्लब से निकले, मंडी हाउस में थोड़ा रात को 11 बजे हम लोग घूम रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे. तो हमको पोस्टर दिखा सिर्फ डीडी न्यूज़ के बाहर, और उस बहुत सारा, जब भी डीडी में कुछ नया शो आता है तो पूरा भर देते हैं, पूरी चारों तरफ से. वो था क्या बोले यूपी, इवेंट का नाम था, सीमा करके जर्नलिस्ट, अगर मैं नाम से मुझे यार ठीक से याद है. तो अक्सर ही किसी भी कहीं भी राजनीतिक चुनाव होते हैं, वहाँ का जो प्रोमो या पोस्टर बनता है किसी भी चैनल का, तो उसमें या तो उस स्टेट के टॉप लीडर होते हैं, या उस वहाँ पे जो पार्टी होती है उसके पोस्टर होते हैं. उसमें मैंने देखा कि हर एक पोस्टर पे भाजपा का, जो भाजपा की सरकार है, केंद्र बिहार उत्तर प्रदेश सरकार, उसके किसी योजना का पोस्टर लगा था बैकग्राउंड में, सामने एंकर ऐसे खड़ी हैं, तो वो प्रचार नुमा लगा. तो हमने बेसिकली ये सोचा कि इस स्टोरी को ऐसे करेंगे कि डीडी जो एक लोगों के पैसे से चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार, भाजपा सरकार की तारीफ कर रहा है. फिर अगले दिन मैंने स्टोरी पिच कर दिया कि हम इस एंगल से करेंगे. फिर मैंने कहा एक आध शो देख लेते हैं. तो पहला मेरठ का मैंने खोला, और हुआ यूँ कि मेरठ में एंट्री होती है तो पहला जो बाइट लेती है, तो एज अ जर्नलिस्ट मुझे 7-8 साल का अनुभव है, आपको भी है, हम देख के समझ आ जाता है कि ये जेन्युइन बंदा है या प्लांट है. मतलब उसके बातों से, उसके व्यवहार से, मतलब उसकी बातचीत से लग जाता है. तो हमको लगा हो ना सकता ये बीजेपी का बंदा है, और उसको बोला गया व्यापारी हैं यहाँ के, और वो तारीफ करने लगे बीजेपी के. तो मैं ऐसे सोचा कि चलो ठीक है. मैंने गूगल डाला, कुछ नहीं आया. फिर मैंने उस नाम के साथ खेलने लगा कि चलो भाजपा व्यापार मंडल, भाजपा, ये कुछ नहीं बन रहा था. कुछ एक जगह 2012-13 की एक खबर थी ऑनलाइन, उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे भाजपा व्यापार मंडल की बैठक हुई जिसमें फलाना शामिल हुए. मुझे वो एक लिंक मिला पहला. फिर मैंने वहाँ के बीजेपी अध्यक्ष को, मेरठ को फ़ोन किया. मैंने कहा सर आपके यहाँ व्यापार मंडल का अध्यक्ष कौन है अभी? तो उसने बताया, तो मैंने नंबर दे दीजिए. फिर उससे उस आदमी का नंबर लिया, और इस तरीके से पहला, तीसरा, चौथा मिलते गए. अब उत्सुकता बढ़ती गई. डीडी चालाकी ये कर रहा था अपने पूरे शो में कि सरनेम गायब कर दे रहा था. अब आपको लिख दिया जाए, जैसे तहरीम खड़ी हैं, तहरीम, अब पीछे का सरनेम ना हो, तो आप फेसबुक पे डालेंगे, खबरों में डालेंगे, गूगल पे डालेंगे, तो 50,000, मतलब बहुत सारी तहरीम आएंगी. बसंत बहुत सारे आएंगे, पर बसंत कुमार हो या आगे किसी का कुछ सरनेम हो तो ढूंढना आसान होता है. तो बहुत मुश्किल आई. हमने मतलब जौनपुर के पत्रकारों से, यहाँ वहाँ से कोशिश करके, फेसबुक से, ट्विटर से, ये निकाला. तो उसमें मज़ा ये आ रहा था कि आपके पास सरनेम नहीं है, वो कोई
टॉप लीडर नहीं है, स्थानीय कार्यकर्ता है, किसी विधायक से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उसका फेसबुक, तो वो मज़ा आ रहा था वो निकालने में। और हमें अच्छा लग रहा था कि डीडी आपने बहुत कोशिश की छुपाने की, पर हमने पर्दा उतार दिया, तो मज़ा आया था वहीं। मतलब मैंने 3 स्टोरी का जिक्र किया और आप तीनों पढ़ सकते हैं। आयुष की बारी है। आयुष तो अक्सर ही शानदार रिपोर्ट करते हैं, इस बार बताओ। मेरा खुद ही तुम्हारा एक पसंदीदा, तुमने जो स्टोरी की एक पसंदीदा स्टोरी मेरी है, जो ICHR था ना, वो मेरी पसंदीदा है। कैसे आपने वो स्टैब्लिश किया प्रोसेस, अगर आपकी हो वो तो बता दीजिएगा। हाँ, वो ही मेरी स्टोरी है। तो चलो आयुष से पूछते हैं कि आपकी इस साल की फेवरेट स्टोरी क्या है और किस पे बात करेंगे। मेरी स्टोरी थी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च पे, जो इंडिया की एक प्रीमियर हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड यू वांट टू सिक्योर फंडिंग और you want to find institutional support to do such scholarship, ऐसे आपको कुछ लिखना है जिसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, तो आप ICHR को आप हमेशा आपके रेडार पे रहता है। सो our story was that I remember when the Modi government has first come to power 2014, सबसे पहला कंट्रोवर्सी हुआ था was there the person that they had put इन चार्ज ऑफ ICHR, एक कोई व्यक्ति थे जिन्होंने कभी कभी हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप में कोई उनका सीरियस एकेडमिक पेपर उन्होंने लिखा था, और एक पेपर जो उन्होंने लिखा भी था वो भी ये था कि रामायण के समय में ये लोग थे वो लोग थे, मतलब इट वाज वेरी shady, bogus kind of research. And the way I did that story was also very cinematic, क्योंकि एक दिन you have a morning visitor who comes and visits you and he tells you कि there's something going on यहाँ पे, आप देखिए, एंड यू लाइक अच्छा और बताओ, एंड ओवर द वीक्स दे ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स, दे ब्रिंग नेम्स एंड दे ब्रिंग कॉन्टैक्ट्स। एंड स्टोरी हमारी ये थी कि जेरोक्स ऑपरेटर से लेके डेप्यूटी डायरेक्टर तक all positions at ICHR were not just filled by people who were related to the Sangh, but were related to the head of this Sangh organization which works with history, अखिल भारतीय इतिहास योजना संकलन, अबीसी कहते हैं। तो उनके जो हेड थे, उनके नेफ्यू पांडे नाम था, some Brahmanical son, some Brahman he was. I don't remember what his surname was, but yeah, it was upper caste guy. And his family, उनके भतीजे थे डेप्यूटी डायरेक्टर, भतीजे के भाई थे एक और कहीं पोजीशन पे जेरोक्स ऑपरेटर, उस भाई के भाई थे कहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर, एंड ऊपर से नीचे तक सारी नौकरियां, मतलब सिर्फ इट वाज बोथ किनशिप एंड आइडियोलॉजी। एंड आई रिमेंबर अरुण शूरी ने बहुत पहले किताब लिखी थी 1990s में, व्हेन ही वाज क्लोजर टू द बीजेपी, अबाउट हाउ कम्युनिस्ट्स हैव टेकन ओवर ऑन इंस्टीट्यूशंस, और वहाँ से वो नेपोटिज्म करते हैं। तो मैंने वो किताब कॉलेज में पढ़ी थी, एंड सो आई थॉट कि बट the Sangh is doing the same thing and even more shamelessly, because Arun Shuri ने nepotism की बात की थी, लेकिन he could never in that book establish nepotism कि ये आदमी है, इसका रिश्तेदार ये है, इसका दोस्त ये है। लेकिन हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स में we had everything, we knew कौन किसका भाई था, कौन किसका भतीजा था, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है। and it took 1 month to do that story, but एक स्टोरी में एक सिंगल बायलाइन में when you can explain everything and you have things to back it up, nothing makes a reporter happier. So that was my favorite story for that reason. तो लेकिन इस स्टोरी के बारे में सोर्स जो होगा वो आपको एक अनुमान देता है कि ऐसा हो रहा है, 2-4 एक आध नाम बता देंगे जी, पर वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो रिलेशनशिप, मतलब जैसे मैं स्टोरी कर रहा था जिसका जिक्र मैंने किया, तो मैं फेसबुक से अलग अलग माध्यम से किए, भाजपा से जुड़े हुए हैं। रिलेशनशिप थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आपको मेरे पापा के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में, मैं फैमिली के बारे में जानूँ, थोड़ा मुश्किल होगा। वो कैसे आप कर रहे थे, कैसे नंबर निकाल रहे थे? तो जो जैसे फॉर इंस्टेंस द गाय हु वाज द डेप्यूटी डायरेक्टर, जो भांजा था RSS के आइडियोलॉग का, उनके एक मित्र डेटा एंट्री ऑपरेटर बन के आए थे ना। यू कैन एस्टैब्लिश समटाइम्स बाप माँ पिता भाई, लेकिन आप हाउ डू यू एस्टैब्लिश दिस पर्सन इज दैट पर्सनस फ्रेंड? तो I found out that this deputy director had studied in Makhanlal in Bhopal, and I had gone to Bhopal to report on Sadhi Pragya in 2019. तो मैं लोगों को जानता था, तो फ़ोन करके इधर उधर करके मुझे जो डेप्यूटी डायरेक्टर है उनके हॉस्टल रूम में उनके साथ जो व्यक्ति रहता था उसका कांटेक्ट मिल गया। सो आई स्पोक टू हिम एंड ही सेड कि हाँ ये इसका, उनको सबको पता था इसका कौन दोस्त है, तो इसका ये दोस्त है और इसको मैं जानता था, संघ में
ये लोग एक साथ जाते थे, और फिर उनकी मदद से मैंने उनकी इन दोनों की फ़ोटोज़ भी निकाली कि उन्होंने सेल्फी खींची हुई है यहाँ पे वहाँ पे। तो देन वी कुड कॉन्क्रीटली इस्टेब्लिश बिकॉज ऑफ दिस गाइज हेल्प कि ये दोस्त हैं इनके। और समटाइम्स अगर रिश्तेदारी है तो आप लोगों को फ़ोन करेंगे, और जैसे एक व्यक्ति का भाई आया था तो उसको मैंने फ़ोन किया, पूछा कि ये आपके भाई है, उनका नंबर है क्या? कहते नहीं नहीं, ये तो मैं हूँ। अच्छा तो आप हैं, तो आपके भाई का ये जो है ये मिश्रा जी आपके भाई, उनका नहीं? कहता नहीं नहीं उनका नहीं है। तो फिर पता चल गया, उसने मना नहीं किया कहीं पे कि वो भाई नहीं है उसका। फिर देन सेकंड टाइम आई वुड कॉल, आई वुड से आपका ये भाई है, उसको नौकरी मिली है, इसमें नेपोटिज्म है, देन यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, देन दैट पर्सन एंड पीपल ऑल्सो वर नॉट डिनाइंग, मतलब लोग जस्टिफाई कर रहे थे कि क्या हो गया, नौकरी तो मिली है, सरकारी है, 15,000 रुपया मिल जाता है वगैरह वगैरह। सो देन दैट sometimes journalism is just asking the right question, and people go screw themselves over giving the answer, and then you have a story. इसके अलावा कोई और दूसरी स्टोरी जो आपको लगता है जिस पे बात की जानी चाहिए? बहुत है, but that's the story I want to talk about. What's your recommendation? मैं आजकल हर रोज़ लगभग एक फ़िल्म देख लेता हूँ। तो कला जो मेरी फेवरेट है अभी इस साल की, मुझे लगता है इस साल की सबसे फेवरेट मूवी कला ही है। कई लोगों ने उसका रिकमेंडेशन दे दिया, लेकिन एक फ़िल्म आई है डॉक्टर जी, और उसको देखने के बाद एज ए इंडिविजुअल मेरे में काफ़ी बदलाव है। उसमें एक डायलॉग है कि वो लड़की जो होती है रुकुल है, शायद रुकुल प्रीत है, तो जो आयुष्मान खुराना कुछ बोलता है कि बैडमिंटन तो लड़कियों का खेल है, क्रिकेट हमारा खेल है। तो कहती है कि कभी बैडमिंटन खेले होते तो लड़कियों की बात सुनना तुमको आ जाता है, ऐसे करके। बड़ा मतलब ऐसा है कि काफ़ी अच्छे डायलॉग और डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं एज ए इंडिविजुअल, तो काफ़ी अच्छा है, उसको देखना चाहिए। चलिए आयुष, अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं, और आपका रिकमेंडेशन क्या है? My recommendation is I've been gone down this Rabbi Shergill rabbit hole. So I'm listening to all his music, watching all his interviews and everything, and I've also been sending people, including Gourmeher, link of his interview जो उन्होंने दिया था। लेकिन there's this song Rabbi Shergill did in 2007 called Bilkis, which is on Bilkis Bano, but he did it in 2007, और उसमें और भी whistle blowers हैं, या जो लोग, जो बेसिकली थीम ये है कि जो लोग सच बोल रहे हो लेकिन उनको मार दिया जाता है या दबा दिया जाता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इट्स ऑल्सो कॉल्ड जिन्हें नाज है। द लाइन इन द सॉन्ग इज जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, विच इज़ ऑल्सो मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग फ्रॉम द 60s। तो रबी शेरगिल का साहिर लुधियानवी का है ना, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, और गाया मोहम्मद रफ़ी ने, लेकिन ये पुराना वाला है। सो दैट सॉन्ग इज़ माई रिकमेंडेशन। ऑल्सो आई रेड दिस वंडरफुल बुक बाय गेल ऑम्बेट। शी पास्ड अवे लास्ट ईयर। शी वॉज अ ग्रेट अम्बेडकराइट स्कॉलर कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग कास्ट। पतली सी किताब है, 120-130 पेज की इसकी, but it gives a historical perspective on caste of individuals like Phule and Ambedkar. Very simple to read. Academic writing थोड़ा कभी कभी होता है ना, भारी हो जाती है, समझ नहीं आता है, स्पेशली जर्नलिस्ट के लिए। लेकिन इतने सफाई से, इतने अच्छे से उसको समझाया है, लिखा है। So if anyone's interested in something like that, good book to read. तो ये अब इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट अब ख़त्म होता है। लगभग हमने 1.5 घंटे तक बात की, आप सबने सुना, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। जिन भी रिपोर्टर से बात की और उनकी जिन रिपोर्ट्स पे हमने बात की, वो आप हमारे वेबसाइट newslaundry.com और hindi.newslaundry.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही कई हमने वीडियो रिपोर्ट्स पे भी बात की, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ लॉन्ड्री पर जाइए और देखिए। साथ इसके अलावा हम सब ने और हमारे दूसरे साथियों ने और बेहतरीन रिपोर्ट की है, क्योंकि समय की कमी है इसलिए हम सारी रिपोर्ट्स पे बात नहीं कर सकते। तो उन तमाम रिपोर्ट्स को देखिए, और न्यूज़ लॉन्ड्री को अब तक आपने सहयोग दिया, आगे भी सहयोग देते रहें, ताकि हम ऐसे ही नए साल में भी आप तक और बेहतरीन रिपोर्ट पहुंचाते रहें। By the way, we also have an announcement. क्योंकि festive season है, everyone has offers, everyone has discounts. So do we. So this only applies to the first 100 people who do it. But if you want a 20% discount on the Disruptor subscription that Newslaundry gives out along with some cool merchandise, send an email to subscription@newslaundry. In the subject line, put your name and write subscription offer, and the first 100 people who do it will get 20% off on the Disruptor subscription of Newslaundry and some very cool merch. So please follow that up. And with that, this podcast is adjourned.
The subscription model is something that keeps Newslaundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to Newslaundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें.